गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स देखा था। ओके, नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स definition is very simple. Compounds having same molecular formula but different structural formula is known as structural isomers. Clear? So there are four different types of structural isomers. First one is ionization isomers. Ionization isomers बेसिकली बहुत ही सिंपल टाइप्स है. यू कैन राइट इट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ओके, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. आयोनाइजेशन आइसोमर्स. सो व्हेन a counter ion in complex act as a ligand as well as counter ion. ओके, काउंटर आयन तो है ही बट वो लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है. एंड इन अ कॉम्प्लेक्स लिगेंड जो भी होता है, अगर वो काउंटर आयन की तरह बिहेव कर सकता है तो फिर हम उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर. फॉर एग्जाम्पल CONH3 5 times Br SO4. Okay, so SO4 is your counter ion and SO4 is a monodentate ligand. SO4 minus 2 is a monodentate ligand, and here in a complex Br has negative charge. Br minus is also a monodentate ligand and it also act as a counter ion as well as ligand. ओके, तो दोनों कंडीशन होना चाहिए कि काउंटर आयन है वो लिगेंड की तरह काम करना चाहिए एंड जो लिगेंड है वो भी काउंटर आयन की तरह काम करना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है. सो SO4 क्या होगा, वो Br को रिप्लेस करेगा, आयोनाइज करेगा एंड उसकी जगह पे आ जाएगा. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. Both the compounds have same molecular formula but different structural formula. Here in a first one, in a complex Br act as a ligand, and in a second compound SO4 is act as a ligand, and here in a first compound SO4 minus 2 is a counter ion, and in the second one Br minus is a counter ion. Now many students asked the question about it कि SO4 has minus 2 charge and Br has minus 1 charge, so how can they be exchanged? So यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहा है कि SO4 minus 2 ने Br minus को एक्सचेंज किया, रिप्लेस किया, बट टोटल चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है. हियर कोबाल्ट has plus 3 oxidation charge. Here also cobalt has plus 3 oxidation charge. कोई चेंज नहीं होगा. सिंपल क्या हुआ है कि कॉम्प्लेक्स का चार्ज चेंज हो जाएगा बट कोई भी अंदर स्पीसीज का चार्ज कोई चेंज होगा नहीं. ओके, तो ऐसे आइसोमराइजेशन को क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन आइसोमर. आयोनाइजेशन आइसोमर. ओके, सिंपल था. Next one is linkage isomer. So in linkage isomer, remember that it is related to ambidentate ligand. Okay, ये याद रखना है. linkage isomer, that means ambidentate ligand. That means in a ligand more than one atom can donate electron pair. Okay, in a specific ligand more than one atom can donate electron pair. For example, in thiocyanide SCN-1, in thiocyanide sulfur and nitrogen both can donate electrons. In thiocyanide sulfur and nitrogen both can donate electron. Here the example is
Cr chromium SCN is a one ligand and H2O is a second ligand, 5 times plus 2 same. But in a first compound thiocyanide ligand जो यूज हुआ है उसके अंदर से सल्फर विल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, एंड इन second compound nitrogen will donates electron. Okay, nitrogen will donates electron. So the ligand is same but the electron donor atom is changed. इलेक्ट्रॉन डोनर एटम इज चेंज्ड. सो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम चेंज हुआ तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, सो इट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर. एंड यहाँ पे जो लिंकेज बॉन्ड बन रहा है वो उसके अंदर चेंजेस आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लिंकेज आइसोमर. Linkage isomer. So remember that students, ambidentant ligand, because of ambidentant ligand linkage isomers are formed. Next one is coordination isomer. Next one is coordination isomer. So in coordination isomers bicomplexes are used. Bicomplex CONH3 6 times. One complex is attached with another complex CrCN6. So when this type of isomerization can be seen, so there is a condition that the central metal atom of both the complexes have same oxidation state. So here CO has +3 oxidation state and Cr has +3 oxidation state. And there is another condition that the ligands जो भी है NH3 और CN या जो भी है वो सेम टाइप के, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करने के हिसाब से सेम होने चाहिए दोनों, मोनोडेंटेंट, डाइडेंटेंट, बाइडेंटेंट या तो फिर ट्राइडेंटेंट, हेक्साडेंटेंट. सो हियर अमोनिया is also a monodentant ligand and cyanide is also a monodentant ligand. So what will happen? Exchange of ligand. First of all, ammonia is attached with cobalt. Here ammonia is attached with chromium. Cyanide ligand is attached with chromium, and in the second compound cyanide ligand is attached with cobalt. So exchange of ligand, due to exchange of ligand coordination isomers are formed. And conditions आपको बता दिया कि दोनों मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर. एंड लास्ट टाइप इज हाइड्रेट आइसोमर्स. Hydrate isomer, or it is also known as solvent isomer. It is also known as solvent isomer. So in a solvent isomer there is only one condition. As a ligand H2O must be present, at least H2O 2 or 3 must be present in a compound, and it is one type of ionization isomer. For example, CrH2O 6 times Cl3, when a compound is dissolved in water, so water is act as a solvent. In this type of isomerization water is act as a solvent. So what will happen? It is one type of ionization isomer. So what will happen? Ligand जो हमारा है H2O एनकाउंटर आयन इज क्लोरीन. सो क्लोरीन विल रिप्लेस 1 or 2 वाटर मॉलिक्यूल. क्लोरीन इज रिप्लेस्ड 1 or 2 वाटर मॉलिक्यूल. सो देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया H2O को, तो क्या हो गया, H2O एक बाहर निकल गया. तो ये जो टाइप का आइसोमराइजेशन हो गया, वाटर के हिसाब से एक आयोनाइजेशन आइसोमर का ही एक टाइप है, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेट आइसोमर. क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर. क्लियर? So structural isomer has 4 types: ionization isomer, linkage isomer, coordination isomer, hydrate isomers. Now next topic is valence bond theory, and it is also known as VB theory.
most important question of this chapter. Not this, but after this we will discuss the question regarding to valence bond theory. The metal atom or ion under the influence of ligand, याद रखना यहाँ पे ये बहुत important word है, under the influence of ligand, ligand के हिसाब से, under the influence of ligands, metal ion और आयन मेक अवेलेबल कौन सी ऑर्बिटल्स, n-1d, ns एंड np, n-1d जो एक टाइप की ऑर्बिटल्स तैयार होगी जिसके अंदर इफ n इज इक्वल टू 4 देन 3d 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स अवेलेबल होगी, और ns np एंड ये जो ऑर्डर है वो भी याद रखना है, पहले n-1d उसके बाद तुरंत ns एंड np, और दूसरा एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर कौन सा तैयार हो रहा है, ns np एंड nd, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो 4s 4p एंड 4d ऑर्बिटल्स किसके लिए, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स मेक अवेलेबल n-1d उसके बाद ns एंड देन np, और देन सेकंड ऑर्डर इज ns np और nd ऑर्बिटल्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, किसके लिए तैयार करेगी, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बराबर। एंड नंबर ऑफ अवेलेबल मेटल आयन ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ अवेलेबल मेटल आयन ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू मेटल आयन ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो, सो बेसिक यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर hybridization and the shape of the compound. So if coordination number is 4, hybridization हो सकता है sp3, तो उसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, if coordination number is 4 again, so there is another hybridization जो हो सकता है dsp2, shape is square planar, if hybridization is 5, sp3d, coordination number is 5, so sp3d hybridization is possible and the shape is trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal. Now if coordination number is 6, so sp3d2 hybridization is possible and the shape is octahedral. Again coordination number 6 है तो अदर एक पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, शेप उसका भी होगा ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन ये पॉसिबल हो सकता है, बट कैसे डिफरेंट होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के हिसाब से डिपेंड करेगा कि sp3 हो सकता है या dsp2, sp3d2 और d2sp3,
This hybridization depends on the ligand. Okay? एक बहुत ही important टॉपिक है जो एक्चुअली सिलेबस में से निकाल दिया है, ओके, बट वो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. वैलेंस बॉन्ड थियरी कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट इट. तो वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगैंड. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ strong ligand, in presence of strong ligands, electrons in metal ions are getting paired. क्या हो जाएंगे? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पैड हो जाएंगे. कैसे होते हैं इसके बाद ही हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कार्बोनिल, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ इथेन 1,2 डायमाइन, इन प्रेजेंस ऑफ इथेन 1,2 डायमाइन, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन आर गेटिंग पैड. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. वैलेंस बॉन्ड थियरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसके लिमिटेशन में भी है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड के बारे में वैलेंस बॉन्ड थियरी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. ओके, चलो. सो नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी. तो हमने ये देख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, वो है कोई एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं कि एक्सप्लेन geometry, hybridization, magnetic nature of complex तो उसके अंदर फर्स्ट देखते हैं हम लोग कंपाउंड CO NH3 6 टाइम +3. ये कंपाउंड है CO NH3 6 टाइम +3. बहुत ही सिंपल मेथड है ये एग्जाम्पल को, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन of central metal atom. Atomic number is 27. Argon core 4s2 3d7. 4s2 3d7. Now the second step is to find out the oxidation state of central metal atom in the complex. So we can say that according to the complex, cobalt CO central
atom has +3 oxidation state, +3 oxidation state in the complex, we know that how to calculate the oxidation number of metal or any other element, बराबर हम लोग जानते हैं, 11th में हम लोग कर चुके हैं. अमोनिया इज अ न्यूट्रल, सो 0 हो जाएगा. सो +3 इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो. नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ CO+3 आयन. Argon core, electrons are removed from the outer cell, so electrons of 4s orbital are removed first. so 4s तो 0 हो जाएगा एंड एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की ज़रूरत होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? 3D में से. तो 3D 6, 4s 0 हो गया. 3D 6, 4s 0 हो गया. चलो अगर यहाँ पे मुझे दिखाना है ऑर्बिटल हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नाउ यहाँ पे देखो, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो वी विल राइट NH3 is a strong ligand. So electrons are paired in presence of ammonia. तो फिर क्या हो जाएगा? CO+3 27 है. आर्गॉन कोर, चलो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्बिटल से लिख रहा हूँ. (3D orbital) and according to valence bond theory, metal atom or ion under the influence of ligands make available orbitals n-1d, ns and np. n-1d, if n is equal to 4, then n-1 is equal to 3, so n-1d 3d orbital, 4s orbital, and उसके बाद 4p भी 0 है, 4p orbital. So electrons are paired in presence of NH3. So what will happen? यहाँ पे तो पहले थे ही 2 इलेक्ट्रॉन, so ये इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो पैड हो जाएगा. अब देखो d ऑर्बिटल की 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए, सब ऑर्बिटल्स कंप्लीट. उसके बाद कौन सी है? 4s ऑर्बिटल and 4p orbital, and the number of available metal ion orbitals is equal to the coordination number. उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. coordination number is 6, so available orbital must be 6. So you can say that 2 3d orbital, 1 s orbital and 3p orbital. Total number of orbital is 6. So
2 3d orbital, 1 4s orbital and 3p orbit 4p orbital combine together and make sp d2sp3 hybrid orbitals, d2sp3 hybrid orbitals. So what will happen in a empty orbitals, ammonia ligand will donate its electron pair in empty orbitals of cobalt plus 3 ion. Ammonia ligand will donate its electron pair. Okay, so now we can see hybridization देखते हैं. d ऑर्बिटल कितनी यूज हुई है? 2, s ऑर्बिटल एक ही एंड p ऑर्बिटल 3. सो d2sp3 क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन. d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ सेकंड टॉपिक आपको लिखना है. आपको क्या लिखना है? शेप उसका. d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कौन सा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल. नेक्स्ट, मैग्नेटिक नेचर. ऑक्टाहेड्रल शेप भी आपको ड्रॉ करना है. ड्रॉ करते हैं हम लोग. मैग्नेटिक नेचर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पैड. एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. सो मैग्नेटिक नेचर इज डायामैग्नेटिक. देन नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो म्यू इज इक्वल टू 0 0 बोहर मैग्नेटॉन. एंड द लास्ट लाइन आपको लिखनी होगी कि दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लो स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन एंड और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स. चलो ऐसा क्यों बोला लो स्पिन? वाई लो स्पिन एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स? सो वी कैन see that electrons are paired. Electrons are paired. 0 unpaired electron. 0 unpaired electron है. Okay. So spin quantum arc, according to spin quantum number, up spin has +1/2 value and down spin has -1/2 value. So up and down is equal to क्या हो जाएगा? 0. तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज सेड. बराबर. तो ये एक पूरा आपका क्वेश्चन हो गया. इसका सिर्फ शेप ड्रॉ करना बाकी है. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है. आप ऐसा करो कि पहले एक ऐसा स्क्वायर बना दो, फिर उसके ऊपर ट्रायंगुलर और पिरामिडल शेप बना दो. बराबर. बीच में यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम लिख दो और जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ से लिगेंड की लाइन खींच दो. तो ये एक NH3 लिगेंड यहाँ पे, सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. बराबर. इतना ही लिखना है उसके अंदर. ओके. सो क्लियर. CONH3 6 टाइम +3
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग दूसरे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड हमारा चैप्टर उसी के साथ पूरा हो जाएगा।